watching Free Wali Coaching by Bhavin Soni. In this video, I am going to cover big questions related to the admission of partners in my previous videos. So far, I have covered the topics related to the short sums related to new profit and loss ratio, sacrifice ratio, gain ratio, and the short sums related to the accounting treatment of goodwill at the time of admission of partners. So without wasting the time, I am going to teach you today. Let us start with the question number 60 of T.S. Garewal 2020. So question number 60 says, given below is the balance sheet of A and B who are carrying on partnership business on 31st March 2020. A and B shares profits and losses in the ratio 2:1. So the profit and loss ratio is 2:1. So let us take it as old ratio 2:1. Now here is the balance sheet of A and B as on 31st March 2020. Balance sheet says bills payable stands 10,000, creditors 58,000, outstanding expenses 2,000. Capital of A and B are given here 1,80,000 and 1,50,000. So outer column it's 3,30,000. Total of the liability side is 4 lakh. Now on the asset side, cash on hand is 10,000, cash at bank is 40,000, sundry debtors is 60,000, stock is 40,000, plant 1 lakh rupees and building 1,50,000. So the asset side total is also 4 lakh. What does the adjustment says? Okay, A and B has admitted partner C on 1st April 2020 on the following terms. Let us see what are the following terms. C will bring 1 lakh as capital. Children, here C is bringing capital rupees 1 lakh and 60,000 as his share of goodwill for 1/4 share in profit. Basically, C is admitted with 1/4 share. Okay. Now the B, adjustment B, plant is to be appreciated to rupees 1,20,000. The old value of plant is 1 lakh. Now the new value is 1,20,000. See children, it is written plant is to be appreciated to, not by. If it is written by, then we will increase 1,20,000, but it's not written by. It is to be kept to 1,20,000, यानी 1,20,000 तक ही हमें प्लांट को रखना है. यानी हमारा कुल टोटल 20,000 रुपए प्लांट इंक्रीज हो रहा है. And the value of building is to be appreciated by 10%. Here it's written by. So we'll increase the value of building by 10%. That is 15,000. 1.5 लाख रुपए उसकी वैल्यू है. 10% हम इंक्रीज करेंगे यानी हमारे 15,000 रुपए बढ़ेंगे, यानी हमारी न्यू वैल्यू होगी 1,65,000. Stock is found overvalued by rupees 4,000. Stock हमारा 4,000 overvalued है. Then a provision for doubtful debt is to be created at 5% on sundry debtors. The last adjustment says creditors were unrecorded to the extent rupees 1,000. Okay, so we have to pass the journal entries, necessary journal entries, prepare revaluation account and partners capital account and the balance sheet after the admission of the partner C. So let us start. तो सबसे पहले यहाँ पे हमें बैलेंस शीट में ये देखना है कि कोई रिजर्व्स है. अगर हमारे पास बैलेंस शीट में रिजर्व्स हैं या तो हमारी ओल्ड गुडविल दी हुई है बैलेंस शीट में, तो सबसे पहले हमें उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है. अगर ओल्ड गुडविल दी होती है, ओल्ड गुडविल होती है हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड, अगर ओल्ड गुडविल दी होती तो हम, अब हमारे पास ना ही हमारे पास कोई रिजर्व है लायबिलिटी साइड, ना ही हमारे पास एसेट साइड कोई गुडविल है, तो यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे या तो गुडविल हम राइट ऑफ नहीं करेंगे. अब हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री से. हियर नेसेसरी पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. हम यहां पर जर्नल एंट्रीज पास करते हैं. C will bring rupees 1 lakh as his capital, यानी C कैपिटल लाया है बच्चों. C 1 लाख रुपए एज कैपिटल लाया है, तो मैं फर्स्ट एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल अकाउंट. कैपिटल में 1 लाख रुपए जाएंगे, 1 लाख रुपीस फॉर कैपिटल. दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे एज हिज शेयर ऑफ गुडविल रुपीस 60,000. 60,000 वो गुडविल भी लाया है, यानी इट्स अ न्यू गुडविल, मींस प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 60,000. यानी कुल मिला के 1,60,000 बैंक में हमारे पैसे आ रहे हैं. ओके, ऐसे एज्यूम किया गया कि पार्टनर जब लाया 1 लाख रुपए और 60,000 दोनों ही वो
चेक से लाया है। ओके, सो नाउ लेट अस सी वन मोर एंट्री। प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड ₹2,1,20,000, यानी जो हमारी न्यू प्लांट की वैल्यू है वो 1,20,000। मैं जैसे जैसे जर्नल एंट्री कर रहा हूं वैसे वैसे मैं यहाँ पे लेजर पोस्टिंग भी आपको सिखा रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले इसकी हम लोग जर्नल एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट में यहाँ पे छोटा सा बैंक अकाउंट बनाने का यहाँ पे बोला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। बैंक अकाउंट छोटा सा है, साइड में बैंक अकाउंट बनाया है। आप इसको एज अ वर्किंग नोट भी अपने रिकॉर्ड के लिए बना सकते हैं। तो आई विल स्टार्ट विद द बैंक बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारी ओपनिंग बैलेंस बैंक की हमें बैंक बैलेंस दी हुई है, ना कि हमें बैंक ओवरड्राफ्ट दिया। अगर बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होता हम लोग क्रेडिट साइड लिखते, मैं यहाँ पे लिख देता हूं डेबिट और क्रेडिट। अब हमारी बैंक बैलेंस इस क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, कैश एट बैंक 40,000 रुपीज दिया है बच्चों, 40,000 रुपीज हमारा बैलेंस दिया हुआ है। अब इस जर्नल एंट्री को मैं पोस्ट करूंगा बैंक अकाउंट में डेबिट साइड टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। 1,00,000 रुपए हमारे कैपिटल के आए और 60,000 हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल आया। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। एक सजेशन है बच्चों, अगर बैंक के ट्रांजैक्शन एक से ज्यादा है तो इट इज एडवाइजेबल कि आप बैंक अकाउंट प्रिपेयर करें। इससे क्या होता है, जो मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं, उसके चांस कम हो जाते हैं। 60,000 मैं लिख दूंगा यहाँ पे गुडविल के। ओके, नाउ लेट अस नाउ ब्रिंग डाउन द बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बच्चों ये जो थे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल लिखूंगा मैं 1,80,000 एंड 1,50,000, 1,80,000 एंड 1,50,000 यहां पर आ गए हमारे बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब एंट्री करते हैं हम, ये जो सी कैपिटल क्रेडिट हुआ है, सी का कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो उसकी क्रेडिट साइड पकड़ेंगे बाय बैंक अकाउंट। ये भाई साहब जो हमारे 1,00,000 रुपए लाए हैं चेक से, उसे हमने रिकॉर्ड कर दिया। यानी बैंक अकाउंट से बैंक बैलेंस हमारा 1,60,000 कैसे बढ़ा, सी हमारा कैपिटल हमारे बिजनेस में लाया है, तो मैंने यहाँ पे सी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड 1,00,000 रुपीज रिकॉर्ड कर दिया। अब देख लेते हैं, प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू 1,20,000। पुरानी वैल्यू है 1,00,000 और न्यू वैल्यू है हमारी 1,20,000, यानी में 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो बच्चों मैं यहाँ पे कंबाइंड एंट्री आपको सिखाऊंगा, जैसे कि जो भी एंट्री है रिवैल्यूएशन की, उसमें जहां जहां हमें प्रॉफिट हो रहा है उसकी हम कंबाइंड एंट्री करेंगे, और जहां जहां हमें लॉस हो रहा है उसकी हम एक अलग से कंबाइंड एंट्री करेंगे। तो देख लेते हैं, प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू 1,20,000, यानी ये भी प्रॉफिट वाली एंट्री है। दूसरा, बिल्डिंग इज आल्सो एप्रिशिएटेड बाय 10%, ये भी हमारी प्रॉफिट वाली एंट्री है। तीसरा, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000, यानी स्टॉक ओवर वैल्यूड है, हमें उसे कम करना है, ये लॉस वाली एंट्री है, तो इसे हम अलग एंट्री से पास करेंगे। दूसरा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अच्छा, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हमेशा लॉस वाली एंट्री होती है। देख लेते हैं आगे, क्रेडिटर्स वेयर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट 1,00,000 रुपीज, ये भी लॉस वाली एंट्री। तो हमारे पास टोटल 2 प्रॉफिट वाली एंट्री है, जिसे मैं यहाँ पे कंबाइंड एंट्री पास करूंगा। तो बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ पे, प्लांट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो प्लांट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एसेट्स हमेशा डेबिट होते हैं। प्लांट अकाउंट डेबिट, देन बिल्डिंग की वैल्यू भी एप्रिशिएट हो रही है, अकाउंट डेबिट। प्लांट की वैल्यू हमारी 20,000 से बढ़ रही है और बिल्डिंग की वैल्यू हमारी 15,000 इंक्रीज हो रही है। लिखा हुआ है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 10%। टू रिवैल्यूएशन हमारा क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा 35,000। तो यही एंट्री मैं यहां पर पोस्ट करूंगा। बच्चों यहाँ पे याद ध्यान रखिएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है, तो हम क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे बाय प्लांट अकाउंट 20,000 बाय बिल्डिंग अकाउंट 15,000। ये हो गया हमारा रिकॉर्ड प्रॉफिट। अब हम न्यू वैल्यूज रिकॉर्ड करते हैं जो हमारी न्यू बैलेंस शीट में आएगी। प्लांट हमारा 1,00,000 था, न्यू वैल्यू हमारी 1,20,000। तो मैं यहाँ पे एसेट साइड प्लांट 1,20,000 और बिल्डिंग जो कि हमारा पहले 1,50,000 था, 10% इंक्रीज होने की वजह से वो हो गया 1,65,000।
हो गया हमारा न्यू वैल्यू रिकॉर्ड। और रिवैल्यूएशन में भी हमने रिकॉर्ड किया और हमने बैलेंस शीट में भी न्यू वैल्यू रिकॉर्ड की। बच्चों जब जब आप जर्नल एंट्री कर रहे हैं तब आप पोस्टिंग कर लेंगे, इट इज एडवाइजेबल। नहीं तो क्या होता है कई बार हम लोग कुछ जर्नल एंट्रीज या तो रिवैल्यूएशन में लिखना भूल जाते हैं या बैलेंस शीट में लिखना भूल जाते हैं, फिर लास्ट में हमारे पास एग्जाम के अंदर इतना टाइम नहीं होता कि हम चेक करें कि भाई हमारी कौन सी एंट्री मिसिंग है। हम सिर्फ क्या करते हैं, बैलेंस शीट का टोटल करते हैं, जो कि ज्यादातर सेम नहीं आता है। ओके, अब देख लेते हैं आगे। स्टॉक इज फाउंड ओवरवैल्यूड बाय 4000, यानी स्टॉक हमारी बुक्स में 4000 ज्यादा दिख रहा है, तो हमें उसको कम करना है, सिंपल। यानी ये हमारा लॉस है, यानी रिवैल्यूएशन लॉस के टाइम डेबिट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू कम हुई बच्चों, यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू कम हुई है, यानी क्रेडिट। एसेट्स की वैल्यू 4000 रुपीज कम हुई। ओके, अब आगे देख लेते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स हमारे 60000 है, 6 5 30, 3000 रुपीज का हमें प्रोविजन करना पड़ेगा, जो कि हमारा लॉस है। हम लोग उसको सेट असाइड प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं डेटर्स पे, बैड डेट रिजर्व जिसको बोलते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 3000, ये हो गया हमारा 3000 का डाउटफुल डेट। क्रेडिटर्स वे आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट 1000 रुपीज। क्रेडिटर्स हमने 1000 के थे जो रिकॉर्ड ही नहीं किए थे, अचानक से रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। इसका मतलब हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो एक टेंशन वाली बात है, और टेंशन वाली बात है यानी लॉस है। 2 क्रेडिटर्स अकाउंट अमाउंट इज 1000, यानी 8000 रुपीज हमारा रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। ओके, तो मैं यहां पे तुरंत जर्नल एंट्री पास करके लेजर पोस्टिंग कर लेता हूं। टू स्टॉक अकाउंट 4000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट इज 3000, और टू क्रेडिटर्स जो अनरिकॉर्डेड है 1000। ये हमारी यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी पोस्टिंग हो गई। अब हम न्यू वैल्यूज रिकॉर्ड करते हैं। चलिए, न्यू वैल्यूज हम लोग एसेट्स की वैल्यूज एसेट साइड और लायबिलिटीज की वैल्यूज हम लायबिलिटीज साइड रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले स्टॉक 4000 है, ओल्ड वैल्यूज की कितनी थी, 40000 थी, अब 4000 कम करना है, यानी न्यू वैल्यू हमारी 36000 होगी। ये आ गया हमारा स्टॉक 36000। अब देख लेते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%। मैं यहां पे डेटर्स लिखता हूं, डेटर्स हमारे 60000 है, माइनस 5% बीडीआर दैट इज 3000, बाहर वैल्यू आएगी 57000। 60000 माइनस 3000 इनर कॉलम, बाहर आएगा 57000। और तीसरा है क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड थे हमारे, जो हमने अब रिकॉर्ड किए हैं, जिससे हमारी वैल्यू बढ़ेगी। तो क्रेडिटर्स पहले थे 58000, अब हमने 1000 बढ़ाए तो क्रेडिटर्स हो गए हमारे 59000। ये हो गए हमारे क्रेडिटर्स। तो यहां पर हमारी ये जर्नल एंट्री हो गई। अब एक जर्नल एंट्री अगर आपको पता हो तो हमारी एक जर्नल एंट्री बाकी है, जो कि प्रीमियम फॉर गुडविल है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को मैं यहां पर डेबिट करूंगा। डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल का। इसके जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है। ओके, तो यहां पर हम लोग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, यहां पर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब बच्चों अगर आपको याद हो तो न्यू रेशियो अगर नहीं दिया हो तो ओल्ड रेशियो विल बी सेक्रीफाइस रेशियो एंड ओल्ड पार्टनर्स विल बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो यहां पर ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:1, यानी सेक्रीफाइस रेशियो भी होगा हमारा 2:1। तो हमारे पार्टनर्स एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। 60000 जो है हम उसको सेक्रीफाइस रेशियो यानी ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो इसमें सेम है, उसे हम 2:1 रेशियो में बांटेंगे, दैट इज डिवाइड बाय 3। तो ये हो जाएगा हमारा 40000 और ये हो जाएगा हमारा 20000। गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर हो गया, जिसे हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में
डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। ओके, तो यहाँ पर एक चीज और बाकी है हमारी, यहाँ पे सी जो कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है 60,000। ओके, हम उसकी भी एंट्री यहाँ पर कर लेते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट यहाँ पर बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, सॉरी, अकाउंट 40,000 एंड 20,000। ये हो गया हमारा गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन पुराने या सेक्रीफाइस पार्टनर्स में। पुराने पार्टनर्स नहीं बोलेंगे हम यहाँ पर, सेक्रीफाइस पार्टनर्स, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ए और बी है। यहाँ पर हमने वो 40,000 और 20,000 पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। अब देखते हैं जो चीज जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है वो चीज हम सिंपली उसमें रिकॉर्ड कर देते हैं। आइए नाउ देख लेते हैं कौन कौन सी चीजों में हमने एडजस्टमेंट नहीं देखा है। तो देख लीजिए पहले लायबिलिटी साइड, बिल्स पेएबल में 10,000 रुपीज, बिल्स पेएबल जो अनचेंज्ड है, बिल्स पेएबल 10,000 जो अनचेंज्ड है, जैसा ही हमें वैसे एज इट इज रिकॉर्ड कर देना है। देन क्रेडिटर्स हमने चेंज किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अनरिकॉर्डेड है, अनचेंज्ड है, सॉरी 2,000, उसमें कोई चेंज नहीं है। कैपिटल्स में चेंज होगा ए बी, अब सी भी आएगा यहां पर एज अ पार्टनर। अब देख लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल करेंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होगी वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी, और पार्टनर्स का जो भी बैलेंस आएगा वो हमारा लायबिलिटी साइड आएगा। सो लेट अस सी, दिस टोटल इज 20 प्लस 30 प्लस 35, ये आ गया हमारा 35,000। 35,000 में से अगर मैं 8,000 माइनस करूं तो मेरा बचता है 27,000, जो कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, जिसे मैं पार्टनर्स कैपिटल में बांट दूंगा। कैपिटल अकाउंट यहां पे हमें लिखना पड़ेगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट बट रहा है ए और बी के बीच में 2/3 1/3, 2/3 और 1/3 जो होता है हमारा 18,000 है 9,000, ये आ गया हमारा 18,000 और ये आ गया हमारा 9,000, इसका टोटल आ गया 35,000। अब ये जो 18,000 और 9,000 है, हमें आपको बताया था पहले, क्रॉस करना है। यहां पे जो डेबिट हुआ है यहां पे वो क्रेडिट होगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पे लिखेंगे हम प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है जो होगा हमारा 18,000 एंड 9,000। अब चेक कर लेते हैं, इसका टोटल करते हैं बच्चों, इसका टोटल करेंगे हम। ओके, तो इसका टोटल सिंपल है 1 लाख रुपीस, सी का कैपिटल 1 लाख रुपीस, 1,50,000 60 70 1,79,000, और इसका देख लेते हैं 1,80,000 प्लस 40 2,20,000 30 38 2,38,000। और यहां पे हमारा डेबिट साइड माइनस करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ नहीं है, तो जो बचेगा वो पूरा का पूरा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो हमें बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। 2,38,000 1,79,000 एंड 1 लाख। ओके, तो ये आएगा हमारा लायबिलिटी साइड एज अ कैपिटल। ए का कैपिटल हम लोग लिख लेते हैं 2,38,000 1,79,000 एंड 1 लाख। तो इसका टोटल होता है 5,17,000 हमारा कैपिटल, टोटल कैपिटल होता है न्यू फॉर्म इज 5,17,000। अब देख लेते हैं हम लोग कि हमने एसेट साइड क्या लिखना बाकी रह गया। आप देख सकते हैं वहां पर बैंक बैलेंस दिख रही है आपको, बैंक बैलेंस जो हमने बैंक अकाउंट बनाया था उसका टोटल देख लेते हैं। दिस इज 2 लाख, 1 लाख प्लस 40 प्लस 60, ये हमारा हो जाएगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ऑफ द न्यू फॉर्म। ये 2 लाख रुपए हमारा बैंक बैलेंस है, जिसे हम बैलेंस शीट में लिखेंगे 2 लाख। और एक चीज बाकी है, देख लेते हैं एसेट साइड कौन कौन सी चीजें हमने रिकॉर्ड की है। कैश एट हैंड, कैश इन हैंड आ गया हमारा ये 10,000। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा कंजेस्टेड, बोर्ड ज्यादा, कंटेंट ज्यादा है और बोर्ड थोड़ा सा छोटा तो नहीं बोल सकते इसको, लेकिन कंटेंट जर्नल एंट्री और पार्टनर्स कैपिटल को लेके थोड़ा सा मैसी हो गया है। ओके,
अब देख लेते हैं एसेट साइड हमने कौन कौन सी चीजें नहीं ली है। डेटर्स यहाँ रिकॉर्ड कर दिए हैं, स्टॉक रिकॉर्ड कर दिया है, प्लांट एंड बिल्डिंग भी हमने रिकॉर्ड कर दिए। अब देख लेते हैं इसका टोटल चेक करते हैं हम लोग। होगा 0 13 plus 5 18 carry 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 8 carry up 1 1 2 3 4 5 5,88,000। बच्चों इसका टोटल आ गया 5,88,000। आई एक्सपेक्ट इसका भी टोटल 588 ही आए। 7,000 plus 2 7 plus 2 is 9 9 plus 9 18। चलिए 8,000 तो आया कम से कम। 18 के लिए 1 5 6 7 7 8 इसका भी आया 8 and this is 5,88,000। यानी इसका टोटल भी 5,88,000 आया। यानी हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई है, अर्थमेटिकली हमारी बैलेंस शीट करेक्ट है। Now let us start question number 65 of T.S. Garewal edition number 2020. Okay, so question number 65 says on 31st March 2017 the balance sheet of Abir and Divya who were sharing profits in the ratio 3:1. So the ratio, old ratio between Abir and Divya is 3:1. Let us see their balance sheet. Balance sheet as on 31st March 2017 is given. Creditors 2,20,000, employees profit fund, profit provident fund. See children, this is a liability. Do not mess it with the reserves. Okay, so this is the liability. Employees profit provident fund, and the third one is investment fluctuating fund. This is specific reserve. Investment fluctuating fund is 1 lakh. It is for the fluctuation in the price of the investment. Then we have general reserve 1,20,000. Then capitals of Abir is 6 lakh and Divya is 4 lakh. The total of the balance sheet on the liability side is 15,40,000. Let us see on the asset side. Cash at bank 1,40,000. Debtor 6,50,000 on which there is a provision of 50,000. So outer column it is 6 lakh. Stock is 3 lakh. Investment whose market value is 4,50,000 and the cost price is 5 lakh. So here there is the reduction, decrease in the value of investment, which is 60,000. Okay, but don't worry, we have investment fluctuating fund, so there won't be any loss in the revaluation account. क्योंकि यहाँ पे investment fluctuating fund दिया हुआ है तो उसी में से ही उठा लेंगे. So let us see the adjustments. Vibor on 1st April 2017 is admitted for 1/5 share. New profit and loss ratio is also not given. Vibor shall bring 80,000 has share of premium for goodwill. Vibor कितना goodwill लाएगा? 80,000 rupees goodwill लाएगा. Capital के बारे में कुछ बोला नहीं है. Stock was overvalued by rupees 20,000. यानी stock हमारे बुक्स में overvalued किया हुआ है 20,000, जिसे हमें कम करना है. Debtors whose dues were of rupees 5,000 were written off as bad debts in past were paid 4,000 in full settlement. यानी जिसको हमने 5,000 रुपए राइट ऑफ कर दिया था, अब वो भाई साहब ने हमें 4,000 रुपए पे कर दिए यानी कैश बढ़ेगा और बैड डेट रिकवर इज अवर इनकम. 2 month salary at the rate 6,000 per month was outstanding. 6,000 per month, एक महीने का 6,000, 2 महीने का 12,000 रुपए is outstanding. Vibor was to bring in capital to the extent of 1/5 of the total capital of the new firm. अच्छा बच्चों, ये last adjustment तो last adjustment is related to the capital adjustment जिसे मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया है. ये last adjustment आप अच्छी तरह से ध्यान देना. ओके, तो उसके पहले मैं ये जो एडजस्टमेंट दिए हुए हैं उसे कंप्लीट करता हूं. लेट अस सी. तो सबसे पहले मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, सारी जितनी भी बैलेंसेस है हमारी वो बैलेंसेस सारे मैं यहाँ पर एक आपको पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, इंस्ट्रक्शन दिए थे. मैं छोटा सा बैंक अकाउंट बना लेता हूँ यहाँ पे मेरे रेफरेंस के लिए. बैंक अकाउंट, तो जो भी बैंक की बैलेंस है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे. लेट अस सी बैंक बैलेंस कुछ दी हुई है कि नहीं हुई? हाँ दी हुई है 1,40,000 टू
बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,40,000। बच्चों अब इसमें जर्नल एंट्रीज नहीं करनी है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ जर्नल एंट्रीज बताऊंगा। तो विभोर शेल ब्रिंग ₹80,000 एज द प्रीमियम फॉर गुडविल, तो उसकी जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। पता चला मैंने बैंक अकाउंट बनाने को क्यों बोला है आपको। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 80,000, और दूसरी एंट्री होती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की, जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जैसे यहाँ पर न्यू रेशियो नहीं दिया है, सैक्रिफाइस रेशियो नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ पे हमें एक रूल याद रखना पड़ेगा एज यूजुअल, ओल्ड रेशियो इज द सैक्रिफाइस रेशियो व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन। ओके, तो मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री पास कर लूंगा। यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अबीर्स कैपिटल एंड टू दिव्यास कैपिटल, लेकिन वो थोड़ा सा बाद में। सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स कैपिटल को लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने बैलेंसेस हैं, अबीर 6 लाख रुपीस बैलेंस है, और इसका बैलेंस है 4 लाख रुपीस, और इसका कोई बैलेंस था ही नहीं, ये न्यू एडमिटेड पार्टनर है जिसका कैपिटल हमें निकालना है लास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर। ओके, अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल यहां पर उसकी मैं आपको जर्नल एंट्री दिखाऊंगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 80,000 टू अबीर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू दिव्यास कैपिटल अकाउंट 80,000, और रेशियो हमारा है 3:1, यानी 60,000 और 20,000 में बटेगा। तो इसको हम लोग लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं इसकी। प्रीमियम फॉर गुडविल यानी अबीर और दिव्या की कैपिटल क्रेडिट हुए, तो क्रेडिट साइड पकड़ेंगे हम बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अबीर को मिलेंगे 60 और दिव्या को मिलेंगे 20,000। इससे कुछ नहीं मिलेगा, ये तो लेके आ रहा है। ओके, अब देख लेते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज में कोई चेंज हुए हैं। वो स्टॉक वाज ओवरवैल्यूड बाय 20,000, यानी स्टॉक को हमें कम करना पड़ेगा, यानी रिवैल्यूएशन का लॉस है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, कितना कम किया हमने, 20,000 कम किया। न्यू वैल्यू, पुरानी वैल्यू थी हमारी 3,20,000 से हमने कम कर दिया। अब हमारी न्यू वैल्यू हो जाएगी 2,80,000। ये हो गई हमारी न्यू वैल्यू, 20,000 रुपए मार्केट वैल्यू कम हो गई उसकी। अब डेटर्स जिनके हमने 5,000 रुपए बैड डेट राइट ऑफ कर दिए थे पिछले साल में, कहीं पे पास्ट में किए होंगे, उन्होंने हमें 4,000 रुपीज पेमेंट कर दिया फुल सेटलमेंट में। ओके, यानी हमें सिंपल चीज याद रखनी है, यहाँ पे हमें फायदा हो रहा है। बैड डेट रिकवर इज अ गेन फॉर द बिजनेस। तो देख लेते फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन मिल क्या रहा है, कैश मिल रहा है। बच्चों इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताता हूं कि कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर अकाउंट एंड बैड डेट रिकवर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये इसकी जर्नल एंट्री होगी, लेकिन हम लोग इसकी डायरेक्ट एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डायरेक्ट एंट्री इसकी बाय कैश अकाउंट। 4,000 रुपए जो आए वो हमने ले लिए कैश। यहाँ तो बैंक, बच्चों यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट बनाया है, इसलिए मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखूंगा, और वो बैंक अकाउंट में यहाँ पर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,000 रुपए हमारे बैंक बैलेंस बढ़ी, जो हमने बैंक में दिखा दी। 2 मंथ सैलरी 6,000 पर मंथ वाज आउटस्टैंडिंग, यानी 12,000 रुपए हमारा लॉस हो रहा है क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है, लॉस हो रहा है। तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000, मुझे लगता है यहाँ पर लॉस होगा, रिवैल्यूएशन लॉस होगा, देख लेते हैं। ओके, तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड लिख देता हूं मैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000। अच्छा, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी कोई भी नहीं है। नाउ ये कैपिटल वाला जो लास्ट एडजस्टमेंट है वो हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल्स नहीं दिए हुए हैं, उसके बेसिस पे ही होगा, निकलेगा तब हम या तो विभोर जो है थर्ड पार्टनर, उसका कैपिटल हम निकाल पाएंगे। अब देख लेते हैं
यहाँ पर और कुछ छूट तो नहीं रहा। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो शायद कुछ नहीं छूट रहा है। ओके, देख लेते हैं। अब एक एडजस्टमेंट है यहाँ पर, हिडन एडजस्टमेंट, मार्केट वैल्यू जिसकी 4,40,000 है। ओके, और उसकी कॉस्ट प्राइस है 5 लाख रुपए, यानी 60,000 का लॉस हो रहा है। वैसे तो अगर रूल के हिसाब से रिवैल्यूएशन में ये लॉस आनी चाहिए 60,000, लेकिन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड पहले से ही दिया हुआ है 1 लाख रुपए, यानी 60,000 जो लॉस हुई वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड में से हम निकाल लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल एंट्री करके दिखाता हूं उसकी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए जो क्लोज होने वाला है। देन टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितने रुपए कम हो गया? इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपीज से कम हो गया। बचा कितना? 40,000 रुपीज बचा, वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। टू अबीर कैपिटल अकाउंट एंड टू दिव्यास कैपिटल अकाउंट, जो होगा हमारा 30,000 एंड 10,000। तो ये हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड की जर्नल एंट्री। 1 लाख रुपए में से 60,000 इन्वेस्टमेंट खा गया और बाकी के जो 40,000 थे वो हमारे अभी और दिव्या खा तो नहीं गए, लेकिन उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया। अब वो घर जाके खाएंगे शायद। ओके, चलिए नाउ लेट अस सी दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट की तो शायद एंट्री यहां पर हो गई है, मुझे नहीं लगता है और कुछ नहीं, शायद कुछ नहीं है, तो मैं यहां पे लॉस या प्रॉफिट निकाल लेता हूं। रिवॉल्यूशन का इस साइड का, डेबिट साइड का टोटल है हमारा 32,000, उसमें से 4,000 अगर हम माइनस करते हैं तो बाय यहां पर आएगी वैल्यू 28,000 जो पार्टनर्स कैपिटल में हम बांटेंगे। अकाउंट अबीर एंड दिव्या, अबीर 21, 3:1 में बांटना है। 3:1 में 28,000 लॉस है बच्चों हमारी, तो 21,000 और 7,000 जिसका टोटल हमारा 32,000 यहां पर और यहां पर भी 32,000 आएगा। अब हम लोग इस लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां पर लिखेंगे लॉस 21,000 एंड 7,000। इसे लॉस नहीं मिलेगी, ये तो जस्ट एंटर हुआ है। अब देख लेते हैं यहां पर कुछ रिजर्व्स हमारे छूट गए हैं। ओके, सबसे पहला हमारा रिजर्व है जनरल रिजर्व 1,20,000 जिसको डिवाइडेड बाय 4 यानी 3:1 में बांटेंगे यहां पर बाय जर्नल एंट्रीज की भी मैं आपको बता दूं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। टोटल अमाउंट है हमारी 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4 यानी हो गया 30,000। 30,000 इंटू 3, 3:1 है यानी 30,000 इंटू 3, तो हो गया इसका 90,000 और इसका 30,000 दिव्या को शेयर मिलेगा जनरल रिजर्व का। दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड जो हमने यहां पर जर्नल एंट्री की है, अभी इस कैपिटल अकाउंट और दिव्या कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट किया है, वो भी हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड अकाउंट। शॉर्ट में लिखा है मैंने बच्चों, यहां पर जगह नहीं है इसलिए ये इन्वेस्टमेंट फ्लू नहीं है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड है। 30,000 एंड 10,000 ये भी हमने यहां पर रिकॉर्ड कर दिया है। अब देख लेते हैं न्यू वैल्यूज, जो अनचेंज वैल्यूज हमने ऑलमोस्ट यहां पे लिख दी थी। यहां पर मैं कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालने वाला हूं और यहां पर मैं जो रिकॉर्ड नहीं किए हमने बैलेंस शीट में वैल्यूज, वो भी मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं। लेट अस सी द वैल्यूज। यहां पर देख लेते हैं, ये टैली हो गया हमारा, यहां पे हमने निकाल ली वैल्यूज। बैलेंस शीट के अंदर जो जो चीज हमने नहीं लिखी थी वो अब हम लिख लेते हैं यहां पर। बैंक अकाउंट में यहां पर अभी टैली नहीं करूंगा क्योंकि जो न्यू पार्टनर कैपिटल ला रहा है वो हमें अभी तक पता नहीं है, उसे मैं पूरा अच्छी तरह से आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो दूसरा है हमारा डेटर्स। डेटर्स मैं बाहर डायरेक्टली 6 लाख लिख देता हूं, यहां पर 6,50,000 है
माइनस BDR है 50,000। तो आउटर कॉलम इज 6 लाख। स्टॉक आ गया है। इन्वेस्टमेंट बच्चों अब न्यू वैल्यू है 4,40,000। 5 लाख पूरी नहीं आएगी। 4,40,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे मैं सिर्फ बैंक लिख देता हूं ताकि हमें याद रहे कि बैंक की कितनी बैलेंस हमें यहाँ पर लिखनी है। लायबिलिटी साइड अगर हम चेक करें तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड EPF 1 लाख रुपीस इसका शॉर्ट फॉर्म है EPS। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड हमने यूज कर लिया। 60,000 हमने इन्वेस्टमेंट पे यूज किया, 30,000 और 10,000 हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जनरल रिजर्व भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। न्यू एक लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी आई थी जो हमने तुरंत रिकॉर्ड कर दी। बच्चों ये फायदा होता है, जैसे ही आपके रिवॉल्यूशन में कोई भी लायबिलिटी दिखे, इंक्रीज या डिक्रीज, आप तुरंत उसको बैलेंस शीट में चेंज कर दें ताकि लास्ट में तो उसको याद रहता है। मुझे भी याद नहीं रहता। आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 1 लाख रुपीस। अब लिख देते हैं कैपिटल्स। अबीर, दिव्या एंड विभोर। ओके, अबीर, दिव्या और विभोर की कैपिटल्स मुझे पता नहीं है, हम लोग निकालेंगे। देख लेते हैं इसकी कोई बैलेंस चेक कर लेते हैं हम। Now let us total the capital of Abir, credit side of Abir 67 lakh, 6 lakh 90 plus 10 7 lakh 80,000। तो इसका टोटल आएगा हमारा 7 lakh 80,000। इसका 4 lakh 30,000, 430, 40, 50 and 60 4 lakh 60,000। और ये जनाब अभी भी सस्पेंस में है। ओके, तो 4 लाख 80,000 में से अगर मैं 20,000 माइनस करूं, 4 लाख 80 माइनस 20 यानी 7 लाख 80 माइनस 20 यानी 7 लाख 60 लाख में से 60,000 में से एक और यानी 7 लाख 59,000 बैलेंस बचेगा। 2 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 7 लाख 59,000 इसका आया और 4 लाख 60,000 में से 7,000 माइनस की 4,53,000 इसका है। इसका अभी भी क्वेश्चन मार्क है। अब बच्चों इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट, यहां पर क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। विबोर वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, न्यू फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म मैं आपको समझा था। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म होता क्या है? Capitals of is equal to capitals of Abir plus Divya plus Vibhor। ये हमारा टोटल कैपिटल होता है। यहां पर अबीर कैपिटल प्लस दिव्या कैपिटल प्लस विभोर कैपिटल, उसका हमें 1/5 निकालना है, 1/5 ऑफ दी टोटल कैपिटल। लेकिन यहां पर विभोर का कैपिटल ही नहीं दिया हुआ है। तब हम क्या करेंगे, हमें अबीर और दिव्या का तो कैपिटल पता है ना, देख लेते हैं। कैपिटल ऑफ अबीर दिया हुआ है 7,59,000 और दिव्या का कैपिटल दिया हुआ है 4,53,000। देख लेते हैं, टोटल करते हैं इसका। नाउ इन दोनों का, अबीर और दिव्या का कंबाइंड कैपिटल, हमारे पास जो भी हमें पता है वो कैपिटल हम लोगों ने ऐड किया। उसका कंबाइंड कैपिटल है 12,12,000 और दूसरा थर्ड पार्टनर जो विभोर है उसका कैपिटल है 1/5। 1/5 हमें नहीं पता है किसका 1/5 निकालना है, 1/5 हमें निकालना है। देखो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कंबाइंड कैपिटल का 1/5 निकालो, तो ये कंबाइंड कैपिटल है, इसका आप इजीली 1/5 निकाल सकते हैं, हो जाएगा विभोर का कैपिटल। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन ये बोला हुआ है कि 1/5 कैपिटल, 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल। लेकिन जब विभोर का कैपिटल मिलेगा तो हम टोटल कैपिटल निकालेंगे ना। अब हमें एज्यूम करना पड़ेगा टोटल कैपिटल हमारा 1 है, 1 में से हमने विभोर का कैपिटल हटा दिया 1/5, क्योंकि उसका शेयर भी 1/5 है, देख लीजिए। और विभोर वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, यानी 1/5 अगर हम निकाल लें तो जो बाकी के दो पार्टनर्स बचेंगे उनका कैपिटल 4/5 होगा। उनका कैपिटल कितना होगा? 4/5। यानी ये जो भाई साहब है हमारे दो कैपिटल वो 4/5 है, तो हमें विभोर का कैपिटल है वो 1/5 वो निकालना है। 1/5 कितना? ओके, 1/5 कितना? 12,12,000 जो कंबाइंड कैपिटल है वो किसका कैपिटल है? अबीर और दिव्या का कैपिटल है, जो कि हमारा 4/5 है। कैसे है 4/5? टोटल कैपिटल अगर हम 1 माने
1 में से 1/5 अगर हम माइनस करें, जो कि विभोर का कैपिटल 1/5 माइनस किया, तो जो बचेगा वो 4/5 कैपिटल बचेगा अभय और दिव्या का। ये रहा अभय और दिव्या का कैपिटल 12,12,000 है, वो 4/5 है और हमें 1/5 निकालना है। तो यहाँ पर सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम 12,12,000 into 1/5 into 5/4। देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई into 1/5 डिवाइड बाय 4/5 जो रेसिप्रोकल होके 5/4 बनता है। यानी कुछ नहीं करना है आपको, 4 से डिवाइड करना है, जो आएगा 3,03,000। ये आ गया हमारे विभोर। विभोर को तो अगर जबरदस्त दौड़ाया है हमें विभोर ने 3,03,000 रुपए कैपिटल ढूंढने के लिए। इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। यहाँ पर विभोर का कैपिटल हमको इस तरह निकालना पड़ेगा। अगर इस क्वेश्चन में ये भी दिया हो कि 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल, तो ये रहा कंबाइंड कैपिटल, इसका तुरंत आप 1/5 निकाल दीजिए। और भी एक और सेंटेंस दिया हो सकता है कि 1/5 ऑफ द नेट एसेट ऑफ द फर्म, यानी नेट एसेट इज इक्वल टू टोटल कैपिटल माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। वो भी एक क्वेश्चन आपका ऐसे ही आ सकता है। तो देख लेते हैं हम लोग 3,03,000 रुपए वो कैपिटल ला रहा है, जो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू विभोर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट में डेबिट साइड टू विभोर कैपिटल अकाउंट 3,03,000, जो हम उसके कैपिटल में लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। सबसे आखिरी है 3,03,000, जिसको हम यहां पर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 3,03,000। अब हमारे आ गए कैपिटल्स, अब हम इसका भी टोटल करते हैं। देख लेते हैं बच्चों, बैंक अकाउंट का कैपिटल टोटल 1,40,000 प्लस 80,000। 1,40,000 और 80 कितना होता है 60, 3,20,000 सॉरी 2,20,000 और 3 लाख 2,20,000 और 3 लाख यानी 5,20,000 5,20,000 प्लस 7,000 5,27,000। बैंक का टोटल बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 5,27,000। ये आ गई हमारी बैंक। देख लेते हैं एक बार, 3 लाख और 1 लाख 4 लाख, 4 लाख और 5 लाख 5,20,000 20,027 5,27,000 हमारा आ गया बैंक का टोटल, जो हम बैंक बैलेंस यहां पर लिखेंगे 5,27,000। अब बारी है बैलेंस शीट का टोटल करने की। देख लेते हैं बैलेंस शीट का टोटल कैसे होता है। जो एसेट साइड का हमारा टोटल होगा वो 18,47,000 होगा, और हमने जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड के 3 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैरी फॉरवर्ड किए उसे मैंने एसेट साइड लायबिलिटी साइड एज ए कैपिटल लिख लिया है। 7,59,000 4,53,000 3,03,000, जिसका टोटल हमारा आ रहा है, कैपिटल का टोटल आ रहा है 15,15,000। अब देख लेते हैं बाकी की जो अमाउंट होगी हमारे क्रेडिटर्स हमारे 2,20,000 है, जो अनरिकॉर्डेड थे, हमने अभी तक रिकॉर्ड बैलेंस शीट में नहीं किए थे, जिसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। तो ये थे हमारे 2,20,000 क्रेडिटर्स के। इसको मिलाएंगे अगर हम, तो हमारा बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा 18,47,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 65 टीएस गरेवाल एडिशन नंबर 2020, जिसमें एक एक्सेप्शनल एडजस्टमेंट दी हुई थी, जिसमें पार्टनर 1/5 कैपिटल ला रहा था टोटल कैपिटल का, जबकि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हमें नहीं दिया हुआ था। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हमें नहीं दिया था, इसलिए हमने पार्टनर टोटल कैपिटल को 1 एज्यूम किया, जिसमें मैंने 1/5 माइनस किया, जो आया 4/5। वो 4/5 आया वो कंबाइंड कैपिटल, जो कि ये रहे। ये दो पार्टनर्स के कैपिटल मिलके कंबाइंड कैपिटल है, जो इक्वल टू 4/5 है, जो होते हैं हमारे 12,12,000। दैट्स इक्वल टू 4/5 व्हाट इज इक्वल टू 1/5। तो अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3,03,000, जो हमारे नए पार्टनर विभोर का कैपिटल होगा, जिसे मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया और फिर बैलेंस शीट में लिख दिया। होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।